everyone, welcome back to the lecture of Pharmacology by NEETPG. That's me, Dr. Mangesh Tripathi. So guys, आज के lecture में will be starting with a new system on pharmacology, that is autonomic nervous system. ठीक है ना. ऑटोनॉमिक सिस्टम गाइस हम लोग 6 पार्ट में डिस्कशन करेंगे, 6 हेडिंग्स में या 6 टॉपिक्स में we will cover the ANS, that is autonomic nervous system. So in today's lecture हम लोग पहले देखेंगे acetylcholine, next lecture we will see cholinergic system, then anticholinergic drugs, adrenergic system, antiadrenergic drug, and the last topic which we will cover in ANS is drugs for glaucoma. So guys, आज के lecture में we will be starting with acetylcholine. ठीक है. Now before starting with the acetylcholine guys, you should know what is autonomic nervous system. Now we know that autonomic nervous system is a part of nervous system. It is a part of nervous system which mainly controls the autonomic functions of the body. Autonomic functions means it controls mainly the involuntary functions of the body. For example, heart rate, autonomic function, or we can say the visceral function of body, which is not under our will and wish. ठीक है. For example, heart rate. So heart rate is under not our will and wish. So heart rate, we can say the blood pressure is also not controlled by us, that is voluntary system. So blood pressure, then we can say the secretions of HCl from the stomach is not under the somatic nervous system, or we can say the other system, it is mainly under ANS. So secretions of HCl, then pupil movements मतलब बोल सकते हैं या metriasis, constriction मतलब meiosis, और dilatation मतलब mydriasis. So such functions which are not controlled by the voluntary system of the body is called as the autonomic nervous system. So they are involuntary functions of the body which will be controlled by the autonomic nervous system through different neurotransmitters we have, and acetylcholine, epinephrine and others thing. ठीक है. Understood? This much you should know. Okay. So now autonomic nervous system guys is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई उसके पार्ट्स क्या हैं ANS के, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर पे आएंगे अपने एसिटाइलकोलिन पे. ठीक. ओके. So guys, ANS is divided into sympathetic system, sympathetic nervous system, and parasympathetic nervous system. ये हम लोग बेसिक we already know from your 11-12 standard. ठीक है. That is sympathetic and parasympathetic nervous system. So ये हमारे दो पार्ट हैं, दो सब डिविजन हैं in ANS. Now guys, you know that sympathetic nervous system is having sympathy towards the, we can say, the body. ठीक है. And it mainly reacts when there is emergency. So we can say it acts when there is emergency situation, or we can say it is a system which will mainly work during flight or fright situations. Parasympathetic nervous system is the system which mainly work as a parasympathetic, or it is mainly work during rest and digest system. तो याद रखना गाइस, जो nervous system which works during the emergency, ठीक है, any emergency situation, भाई आप बैठे हो, घर में आग लग गई, ठीक है, कहीं जंगल में गए, सामने से अचानक सांप आया, so the system which gets activated, which will increase your respiratory rate, heart rate, everything is your sympathetic nervous system. While you go for a vacation trip, हॉलीडे ट्रिप पे गए हो, तो उस समय जो सिस्टम काम कर रहा होगा, दैट इज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. इतना हम सबको पता है. ठीक है. अब नाउ गाइस, यू नो दैट नर्वस सिस्टम है. ठीक है. और नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन यूनिट क्या है गाइस? द नर्व्स, द न्यूरॉन्स. तो वी शुड नो दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंटेन्स द न्यूरॉन्स. सो ऑटोनॉमिक nervous system contains two types of nerves. The preganglionic, we can say they are preganglionic and postganglionic. So preganglionic guys, it is myelinated nerve. It has the myelin sheath.
देखो बोथ आर नर्व्स, बोथ विल कंडक्ट द इंपल्स जिसके वजह से रिस्पॉन्स आएगा, बट देयर आर सम गैंग्लियॉन्स। गैंग्लियॉन्स मतलब क्या होता है, वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, ठीक है, कुछ सेंसेशन जाता है, सो बहुत सारे नर्व्स आते हैं जहां पे दे मीट, दैट इज गैंग्लियॉन, ठीक है। सो गैंग्लियॉन, कुछ गैंग्लियॉन और कुछ नर्व्स के पास ऐसी कुछ प्रोटीन वाली शीट होती है which conducts the impulse fast and that is called myelin sheath. So your preganglionic, we have preganglionic myelinated sheath and it is made up of postganglionic non-myelinated sheath. So just remember that your ANS is having two types of neuron, ठीक है, synapse के पहले जो न्यूरॉन आए, ठीक है, that is preganglionic myelinated neuron and we have postganglionic non-myelinated neurons or the nerves, ठीक है। तो हम लोग बेसिक समझ गया that ANS control the visceral function or the involuntary function. ANS is divided into two parts, the flight system or the sympathetic nervous system, and the second is the digest or we can say the rest system, which is also called parasympathetic system. It is made up of two types of nerve, preganglionic, postganglionic. Preganglionic is myelinated, postganglionic is non-myelinated nerve, ठीक है। इतना हमको समझ गया गाइस। अब हमको ये बताना चाहिए, हमने देखा कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ANS, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक का कोई फंक्शन होगा, आपको हमने बताया इट इज इमरजेंसी सिचुएशन, तो इमरजेंसी में कौन कौन से we can say the functions of which organ will increase, क्या होता है, और पैरासिम्पैथेटिक का कहीं घूमने गए तो क्या क्या मतलब सिस्टम कौन से काम करते हैं और क्या होता है सिस्टम के साथ। तो आप लोग हेडिंग दे दो दैट इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन द बॉडी। ओके गाइस, सो वी हैव रिटन सम इफेक्ट्स, कौन कौन से, जैसे हार्ट रेट का एसएनएस क्या करेगा हार्ट रेट को, पीएनएस क्या करेगा प्यूपिल को, एसएनएस क्या करेगा और पीएनएस क्या करेगा। तो इस हिसाब से वी हैव डिवाइडेड, वी हैव मेड सम इंपॉर्टेंट वी कैन से सब हेडिंग, भाई इस सिस्टम को हमारा एसएनएस और पीएनएस क्या क्या करेगा। अगर हम लोग हार्ट रेट की बात करें गाइस, यू नो दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ इमरजेंसी सिस्टम, सो हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो यस इट विल इंक्रीज, सो हार्ट रेट इज इंक्रीज व्हाइल इन पीएनएस द हार्ट रेट इज डिक्रीज। प्यूपिल, अब देखो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो ऑलरेडी यू नो दैट प्यूपिल विल गेट डायलेटेड, एकदम आप शॉक में चले जाओगे, द प्यूपिल विल गेट डायलेटेड, दैट इज इट विल कॉज मिट्रियासिस, व्हाइल द पैरासिम्पैथेटिक यहां पे रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिलैक्स रहेगा प्यूपिल, कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। नाउ ब्लैडर गाइस, नाउ दिस इज अ कॉमन सेंस दैट इफ देयर इज इमरजेंसी आप टॉयलेट के लिए नहीं जाने वाले हो, सब कुछ भूल जाओगे, शुद्ध बुद्ध हो जाओगे, भाई इमरजेंसी है, एवरीथिंग यू विल फॉरगेट। सो ब्लैडर वी कैन से द यूरिन इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज यूरिन वी कैन से यूरिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, बट रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम कर रहे हो, खा पी रहे हो, तो ऑलरेडी योर ब्लैडर विल इंक्रीज, द पेशेंट विल हैव इंक्रीज यूरिनेशन, ठीक है। सो ब्रोंकस अगर हम देखेंगे, ठीक है, अब भाई कोई इमरजेंसी है और बंदा भाग रहा है, बंदी भाग रही है, कुछ इमरजेंसी है, सो वी नीड मोर एंड मोर ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन टू द ब्रोंकस, दे विल गो bronchodilation, so they will dilate, so we'll have bronchodilation by SNS, that is sympathetic nervous system, while parasympathetic भाई रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, so it will have bronchoconstriction. Now stomach, so HCl will decrease while parasympathetic HCl will increase. Now यहाँ पे भाई मोटिलिटी क्या होगी, कमी होगी ना, मोटिलिटी कम हो जाएगी, means peristalsis decreases. भाई अब खा पी रहे हो तो definitely peristalsis will increase, the movements will increase. अब guys common sense लगाओ, adipose tissue, now that is fat tissues, when there is emergency what will happen, we need more fats, ठीक है, we need more energy for coping with the emergency situation, so there will be lipolysis of fat will break down because we need energy, but यहाँ पे खा पी रहे हो और फैट स्टोर हो और मोटे हो जाएंगे, so that is lipogenesis. Now during emergency situation भाई कोई ये नहीं सोचने वाला है, so definitely we can say there is decreased erection of penis, but while rest and digest there is increased erection, ठीक है। So guys, these are the effects of
sympathetic and parasympathetic nervous system on different parameters of the body। हाँ सबको समझ गया? ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा भाई ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, अब ये एड्रेनालिन के थ्रू काम कर रहा है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन के थ्रू। तो ये सिंपैथेटिक में एग्जैक्टली कहां से हमारे स्पाइनल नर्व फाइबर से कहां से अराइज हो रहे हैं इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वाइल इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से नर्व फाइबर अराइज हो रहे हैं, किस पार्ट ऑफ द ब्रेन से, और फिर जाके क्या काम कर रहे हैं, दैट इज विल डील अबाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पहले हेडिंग दे देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या कौन से नर्व वहां से निकलते हैं और यहां से कौन से नर्व निकलते हैं। ठीक है, बस इतना लिख लेना एक अलग से, दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज द एड्रेनर्जिक सिस्टम बिकॉज़ एवरीथिंग इज possible due to adrenaline or we can say epinephrine, adrenergic nervous system, while PNS is also called as the cholinergic system। ठीक, okay, sympathetic nervous system। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भाई नर्व फाइबर कौन से एरिया से ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अराइज होते हैं, दैट वी नो दैट इट इज मेनली अराइजिंग फ्रॉम ए बेसिक 12th स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है दैट इट इज मेनली आल्सो कॉल्ड एज वी कैन से thoracolumbar टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो thoracolumbar दैट इज फ्रॉम T1 to L2। ठीक है, सो सारे फाइबर्स फ्रॉम दिस स्पाइनल कॉर्ड जो T1 से टिल L2 वो सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करेंगे, मतलब वो उनके फंक्शंस हमने देखे, हार्ट रेट ऑल दैट जो हमने देखा, दैट विल बी डन बाय दिस टाइप ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, अब thoracolumbar हमने बोला कि भाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और thoracolumbar आउटफ्लो। ठीक है, अब इनमें दो टाइप के नर्व होंगे हमने देखे थे, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो याद रखना, so preganglionic nerve fiber of SNS is small, so small preganglionic nerve fiber। ठीक है, so small preganglionic nerve fiber। ठीक है, so एक nerve fiber है, ठीक है, जो we already know axon। ठीक है, axon with nucleus with the dendrites, axon and dendrites, the axon terminals। ठीक है, this is one, ये छोटा रहेगा। अब हमारा जो this area, ये पहला न्यूरॉन, अब दूसरा न्यूरॉन जो आएगा, उस दोनों जहां मिलते हैं दैट इज वी ऑलरेडी नो इज साइनैप्स। सो जस्ट रिमेंबर दैट प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ स्मॉल, व्हाइल द पोस्टगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ एसएनएस इज अ बिग वन। ठीक है, बिकॉज उसको ब्रेन से नीचे आना है। ठीक है, उसको इफेक्टर ऑर्गन पे जाके सप्लाई करना है, इसलिए स्मॉल प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर व्हाइल वी हैव अ लॉन्ग पोस्टगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। सो postganglionic nerve fiber will be comparatively longer than the small preganglionic fiber, so it is a large postganglionic fiber। ठीक है, now just remember that this small preganglionic fiber ये हमारा एक फाइबर है। ठीक है, now it will release, कैसे पास करेगा मैसेज, by releasing some neurotransmitter, so that neurotransmitter, just remember that the neurotransmitter of preganglionic nerve is neurotransmitter which is released of preganglionic nerve fiber, just remember it is acetylcholine guys, it is acetylcholine, ACH, ब्रैकेट में लिख सकते हो ACH। ठीक है, while the neurotransmitter of postganglionic nerve fiber, भाई वो जो जहां पे भी जाके वो इफेक्टर ऑर्गन को सप्लाई करेगा, फिर वहां से उसका इफेक्ट आएगा, that is the neurotransmitter NT, short form neurotransmitter का, so neurotransmitter of postganglionic nerve fiber is adrenaline। just remember इसका nerve fiber is किसका, प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक का इज एसिटाइलकोलिन, while पोस्टगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक का इज एड्रेनालिन, इट इज मेजर वन। बट while कहीं पे जैसे हम लोग बोल सकते हैं किडनी और ब्लड वेसल में,
जस्ट रिमेंबर दैट किडनी और ब्लड वेसल में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आएंगे, दे विल रिलीज नॉट एड्रेनालिन, दे विल रिलीज डोपामिन। तो याद रखना, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर गाइस इज adrenaline, while the minor neurotransmitter of postganglionic sympathetic nerve fiber is dopamine. So in kidney and GIT, just remember that postganglionic nerve fiber releases neurotransmitter called dopamine. ठीक, जस्ट इतना आपको याद रखना है, मेजर एंड माइनर। अब ध्यान से देखो गाइस, हमारा ये यहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन कोई रिसेप्टर पे जाके काम करेगा। सो वी नो दैट प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा? एसिटाइलकोलिन। ठीक, अब एसिटाइलकोलिन भाई यहाँ पे काम कर रहा है, उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो किसी रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा। तो याद रखो, एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन post ganglionic nerve fiber, post ganglionic nerve fiber is called as nicotinic neuronal receptor। इसको बोलते हैं nicotinic neuronal receptor। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं NN receptor। इतना याद रखना है, it is NN receptor, correct? ठीक है, while the receptor present, ठीक है, ऑफ एड्रेनालिन एंड द डोपामिन ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक ऑर्गन या रिसेप्टर, इट इज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। तो याद रखना, पोस्ट गैंग्लियोनिक दैट इज एड्रेनालिन और हमारा डोपामिन जहां पे जाएंगे अपना, ठीक है, जिस रिसेप्टर या ऑर्गन पे, पोस्ट साइनेप्टिक वन पे या पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर पे, जहां पे भी वो काम करेंगे इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू, they contain alpha and beta receptor, and through this receptor they will work, that is the sympathetic nervous system will work। understood? this much इतना समझ गया सबको? ठीक है, small preganglionic, large post ganglionic fiber। now there is one exception also sometime, ठीक है, that this post ganglionic nerve fiber of sympathetic nervous system mostly ये क्या रिलीज कर रहा है गाइस? एड्रेनालिन एंड डोपामिन, ये दो रिलीज करते हैं। बट इन फ्यू प्लेसेस याद रखो, दैट इज स्वेट ग्लैंड प्लस ब्लड वेसल। याद रखना, स्वेट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल, द पोस्ट गैंग्लियोनिक sympathetic nerve fiber, they are modified, they are exception to this, mostly they releases what? Post ganglionic nerve fiber, neurotransmitter adrenaline and sometimes dopamine, but in the organ में post ganglionic sympathetic nerve fiber will release acetylcholine। ये लिख लेना that sympathetic, in some places, in few places, sympathetic post ganglionic nerve fiber releases acetylcholine as a neurotransmitter, not adrenaline or dopamine as neurotransmitter, and that two places are sweat gland, जहां पे क्या करेंगे? It will increase sweat, it will act as cholinergic system, and blood vessel को mainly it will do vasodilation। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, sweat gland, अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है that sweat gland is innervated by, ठीक है, it is mainly innervated by the sympathetic cholinergic neurons because it releases postganglionic cholinergic neuron because it releases acetylcholine, जिसके वजह से sweat increase होता है। ठीक है, and blood vessel में vasodilation होता है। इतना सबको समझ गया? Okay. Okay, so we understood that your preganglionic nerve fiber or sympathetic nerve is releases adrenaline, mainly it is, sorry guys, it is mainly noradrenaline। noradrenaline major है और minor क्या है हमारा? dopamine। ठीक है, so noradrenaline and dopamine। ठीक है, अब ध्यान से देखना, और इसमें एक मॉडिफिकेशन हमने क्या बताया, that post ganglionic sympathetic neurons in two places, that is sweat gland and blood vessel, they will not release noradrenaline or dopamine, they will mainly release acetylcholine as neurotransmitter। अब एक चीज और इस sympathetic nervous system में गाइस है, ध्यान से सुनना, that your preganglionic nerve, ठीक है, वो क्या होते हैं? स्मॉल और पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होते हैं। प्रीगैंग्लियोनिक स्मॉल विल मीट पोस्ट गैंग्लियोनिक, फिर न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है, यहाँ पे कुछ और नॉरएड्रेनालिन है। ठीक है, अब ध्यान सुनना that some
some preganglionic nerve fiber, preganglionic sympathetic nerve fiber, sympathetic nerve fiber, वो क्या करेंगे, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली चले जाएंगे, दे विल डायरेक्टली इनरवेट adrenal gland, adrenal medulla or suprarenal gland, or we can say adrenal gland or suprarenal gland. वो डायरेक्ट इनरवेट करेंगे सुप्रारेनल ग्लैंड को, तो हम लोग बोल सकते हैं प्री गैंग्लियोनिक will directly go and innervate with the adrenal gland, that is adrenal gland will act as the post ganglionic sympathetic nerve fiber, ठीक है। अब that suprarenal gland guys क्या रिलीज करेगा, yes, the most important hormone of suprarenal gland, that is adrenal medulla, is adrenaline. So please remember that some preganglionic sympathetic nerve fiber will directly innervate into adrenal medulla as postganglionic sympathetic nerve fiber. So instead of releasing acetylcholine, you know small preganglionic क्या रिलीज करता है, acetylcholine, वो वहां वो रिलीज ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली जाएगा एड्रिनल मेडुला में, और एड्रिनल मेडुला विल रिलीज नाउ एड्रेनालिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। और एक एक्सेप्शन था दैट some sympathetic postganglionic nerve fiber, they will not release noradrenaline or dopamine, they will release guys what, acetylcholine, so they will increase sweat secretion and blood vessel को dilate करेंगे, ठीक है। दो एक्सेप्शन आप याद रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हमेशा, ठीक है। अब अगर हम ये पूरा देखते हैं गाइस, समरी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें हम एक चीज देखते हैं दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास मेनली 3 न्यूरोट्रांसमीटर है, मेनली 3 न्यूरोट्रांसमीटर। अब एसिटाइलकोलिन कहां रिलीज होता है, प्री गैंग्लियोनिक, बट काम उसके वजह से होता है क्या, नहीं, काम जो लास्ट में होता है दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो वो रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, उसके वजह से भाई हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में जो होता है वो होगा, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। सो वी कैन से दैट sympathetic nervous system, SNS लिख लेना, sympathetic nervous system releases 3 neurotransmitter, first noradrenaline, ठीक है, noradrenaline, मेरी मिस्टेक हो गई थी, मैंने हर जगह एड्रेनालिन बोल दिया, it is noradrenaline, so it releases noradrenaline, second dopamine, some places like where GIT and kidney, and third is yes directly suprarenal gland में जा रहे हैं preganglionic nerve fiber, they will release adrenaline, ठीक है। So hence we can say your sympathetic nervous system is called as the adrenergic system because it is mainly releasing the adrenaline neurotransmitter, ठीक है, इतना सबको समझ गया है, understood, okay। तो याद रखना preganglionic neurotransmitter in sympathetic nervous system is acetylcholine, while the post neurotransmitter of postganglionic sympathetic nervous system is mainly noradrenaline and some places dopamine, but in adrenal medulla it is adrenaline, but in this two, that is in sweat gland and blood vessel, the postganglionic nerve terminal of sympathetic nervous system will release acetylcholine. Exception is always the one which can be asked, ठीक, okay। So understood sympathetic nervous system कौन से रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं गाइस, ये हमको याद रखना है, sympathetic nervous system mainly will act through alpha and beta receptor on the postganglionic effector organ पे, जो उनके रिसेप्टर होंगे वो क्या होंगे, अल्फा या बीटा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गाइस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। गाइस हमने बोला था प्री सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक क्या होते हैं, स्मॉल, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होते हैं, लार्ज। अब याद रखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज मेनली also called as craniosacral outflow, also called as craniosacral outflow, because the nerve fiber which of parasympathetic nervous system arises from the cranial nerve, which cranial nerve, 3, 7, 9, 10 and sacral nerve S2 to S4. So इस जगह से PNS के nerve fiber arise होंगे and they will work during rest and digest system, ठीक है। अब the preganglionic parasympathetic nerve fiber is large,
while post ganglionic parasympathetic nerve fiber is short. ठीक है, ये ध्यान रखना है. प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज लार्ज, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज शॉर्ट. अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर था प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन. While वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर था पोस्ट गैंग्लियोनिक का मेनली नॉरएड्रेनालिन एंड सम प्लेसेस डोपामिन, और एड्रेनल मेडुला में था एड्रेनालिन, बट एक्सेप्शन एक ही था एसिटाइलकोलिन स्वेट ग्लैंड और कहां गाइस, ब्लड वेसल. करेक्ट. But in post-ganglionic nerve fiber, or we can say the post-ganglionic nerve fiber of parasympathetic nervous system, always the neurotransmitter, guys, is acetylcholine. Just remember that it is always and always mainly the acetylcholine. ठीक है. अब pre-ganglionic parasympathetic nerve fiber, ठीक है, the receptor present, so वहां पे भी था receptor of pre-ganglionic, भाई acetylcholine रिलीज होगा, फिर हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर पे, तो किसके थ्रू काम करेगा? सो रिसेप्टर ऑफ प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज निकोटिनिक न्यूरॉनल. ठीक है. व्हाइल रिसेप्टर ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज मस्करिनिक रिसेप्टर. ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं ऊपर मस्करिनिक एम रिसेप्टर्स. ठीक है. सो प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर इज द निकोटिनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर मतलब इफेक्टर ऑर्गन पे जिसके थ्रू एसिटाइलकोलिन काम करेंगे, M1 M2 M3 M4 M5, दैट इज कॉल्ड मस्करिनिक. सो इट इज मस्करिनिक रिसेप्टर. ठीक है. वहां पे क्या था? प्री गैंग्लियोनिक इट वाज it was nicotinic neuronal, while post ganglionic में मैंने क्या बताया था? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर. ठीक है, इतना सबको समझ गया? ओके. To that, your sympathetic nervous system mainly releases the adrenaline, noradrenaline. ठीक है. So we can say sympathetic nervous system is also called, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख के बता दिया, it is adrenergic system, while your parasympathetic nervous system which mainly works through, guys, yes, acetylcholine, it is called cholinergic सिस्टम. ठीक है. अब हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम में मतलब एसिटाइलकोलिन, भाई एसिटाइलकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है. अब वो कैसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है, कैसे रिलीज होता है, और कौन से ड्रग उसके स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस या रिलीज को इनहिबिट करेंगे या टारगेट करेंगे, वो देखेंगे हम लोग. एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन और द मस्करिनिक रिसेप्टर ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एंड दिस cholinergic system then is over. ठीक है, इतना आज हमें देखना है. ठीक है. So we will mainly be focusing today on the cholinergic system. That is the first. उसमें neurotransmitter is acetylcholine. So give the heading synthesis of acetylcholine in the body. Synthesis of acetylcholine. ठीक है, in the body. Okay. Now acetylcholine will be synthesized in the neurons. ठीक है. For example, जैसे मैंने एक बना दिया है. ठीक है, a neuron, a synaptic, the axon terminals, ठीक है, the vesicles हमने एक बनाए हैं. ठीक है, एक न्यूरॉन के. Now, so for example, this is acetyl-CoA. Now, acetyl-CoA will take choline from the surrounding. Choline. So, acetyl-CoA plus choline. ठीक है, it will form acetylcholine. ठीक है. Now, this formation of acetyl-CoA, or we can say formation of acetylcholine with the combination of acetyl-CoA plus choline, ठीक है, is regulated by the enzyme called as choline acetyl transferase. Choline acetyl transferase. ठीक है. अब guys acetylcholine form हो गया, अब वो कहाँ जाएंगे? Now we have the vesicles. So this acetylcholine will go in the vesicles. ठीक है. So acetylcholine goes in vesicles. अब रिलीज करना है ना उससे. ठीक है, तभी भाई ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स निकलेंगे, मैसेज फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट न्यूरॉन पे हमारे. ठीक है. अब ध्यान, प्लीज रिमेंबर गाइस दैट देयर इज व्हेन देयर इज सोडियम एंट्री. ठीक है, सोडियम एंट्री जब होगा
So when the sodium enters the nerves, क्या होता है? Depolarization की repolarization? Yes, depolarization. So sodium entry in the neuron will depolarize the nerve. Depolarization. Will depolarize the neuron. ठीक है? ठीक, अब ध्यान से सुनना, डिपोलराइजेशन हो गया। अब ये सोडियम क्या करता है गाइस, ध्यान से सुनना, सोडियम विल स्टिमुलेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द नर्व्स देयर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। stimulate SER, that is smooth endoplasmic reticulum. Now it will release a ion which is called as the calcium. ठीक है, अब now this calcium will stimulate the vesicles, stimulate vesicles to release neurotransmitter. Neurotransmitter means acetylcholine. So it will stimulate the vesicles to release acetylcholine. ठीक है, इतना सबको समझ गया? ठीक, अब ये acetylcholine गाइस कहां जाने वाले हैं? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, करेक्ट? ठीक, ओके। ठीक guys, now you know this is postsynaptic neuron. You know guys, acetylcholine postsynaptic neuron कौन से रिसेप्टर के थ्रू काम करेंगे? सभी को पता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में postsynaptic neurons और they will work through nicotinic and muscarinic. ठीक है, so acetylcholine will act on the postsynaptic neuron through nicotinic and muscarinic receptor. ठीक है, अब on the postsynaptic neuron guys, on the postsynaptic neuron there are some enzymes which are present. वो क्या करेंगे? They will degrade the acetylcholine. ठीक है, so on postsynaptic neuron or we can say the end organ. देखो postsynaptic neuron के बाद क्या आएगा? Organs जहां पे वो काम करना है, on end organs there are acetylcholinesterase. हम लोग इसको फुल फॉर्म में लिख देते हैं, acetylcholinesterase. अब ये क्या करते हैं गाइस? दे विल डिग्रेड दी एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन दो पार्ट से बना है, एसिटाइल-को एंड कोलिन। सो दे विल डिग्रेड दी एसिटाइलकोलिन इनटू एसिटाइल-को-ए एंड कोलिन। एंड दिस कोलिन गाइस जो फ्री हो गया है, इट विल बी टेकन बैक बाय द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ताकि वापस एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज हो और ये साइकिल चलता रहे। ठीक है, इतना सबको समझ गया? दैट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और द एंड ऑर्गन वी हैव एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज जो इसको डिग्रेड करते हैं। ठीक है, वी अंडरस्टूड दैट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वी हैव द enzyme which will degrade the acetylcholine and they are called as the endogenous, और जो बॉडी में खुद प्रेजेंट रहे, और we can say on the post synaptic neuron और the end organ में जो प्रेजेंट रहे, it is called acetylcholinesterase। ठीक है, अब गाइस समझो हमने बाहर से एसिटाइलकोलिन का कुछ दिया। ठीक है, अब भाई उस एसिटाइलकोलिन को भी डिग्रेड होना है। सो इफ यू सप्लाई एक्सोजीनस एसिटाइलकोलिन, then in the plasma, in the blood, in plasma there is a acetylcholinesterase present which is called as butyrylcholinesterase. butyryl मैं यहां लिख देता हूं, butyrylcholinesterase, also called as pseudocholinesterase. ठीक है, सो BCH हम लोग बोल सकते हैं या PCH। ठीक है, PSCH हम लोग बोल सकते हैं। सो वी हैव butyrylcholinesterase and pseudocholinesterase। कहां पे प्रेजेंट है गाइस? इन द प्लाज्मा फॉर द एक्सोजीनस एसिटाइलकोलिन के डिग्रेडेशन के लिए, जो हमने बाहर से किसी ड्रग के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, सो एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन विल बी डिग्रेडेड बाय acetylcholinesterase of the postsynaptic neuron, while the exogenous acetylcholine will be degraded by the guys, yes, by butyrylcholinesterase, also called as the
also called as the sodicholinesterase in the blood. ठीक है, इतना हमको समझ गया. अब guys there are some drugs जो ना इस एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को ही डिग्रेड कर देते हैं. वो चाहते ही नहीं है कि भाई एसिटाइलकोलिन डिग्रेड हो, वो चाहते हैं कि एसिटाइलकोलिन रहे, वो किसी कंडीशन में रहेगा ना. फॉर एग्जांपल देयर इज सम पॉइजनिंग, ठीक है, सम पॉइजनिंग इज देयर एंड वी नीड मोर ऑफ एसिटाइलकोलिन जो उस ड्रग को न्यूट्रलाइज कर सकता है. करेक्ट. ड्रग्स व्हिच विल neutralize the acetylcholinesterase or the butylcholinesterase, they are called as the cholinergic drugs. They are called as the cholinergic drugs. So drugs which degrade the acetylcholinesterase, that is of endogenous or exogenous, mainly exogenous is your butylcholinesterase and pseudocholinesterase. इनको जो डिग्रेड करे they are the cholinergic drugs. कोलिनर्जिक ड्रग हम लोग जो कोलिनर्जिक ड्रग्स में अलग से पढ़ेंगे, अभी बस नाम आप लोग याद करो. दे आर कार्बामेट्स, कार्बामेट एंड द ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ठीक है. सो दे विल इनहिबिट दिस एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा है, दे विल, वो करने ही नहीं देंगे उसको. ठीक है. सो वी हैव टू गिव कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फोर, ठीक है, phosphorus, and they are what cholinergic drugs. Guys, so guys we just saw that how acetylcholine is synthesized, correct. ठीक है. और कौन से एंजाइम्स होते हैं जो इसको डिग्रेड करते हैं और कौन से ड्रग्स होते हैं जो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को ही को डिग्रेड कर देते हैं. करेक्ट. नाउ हम लोग देखेंगे, अब हम लोग मेन वे फार्माकोलॉजी वी आर स्टडीइंग, सो वी शुड नो भाई कौन से ड्रग्स किस स्टेप ऑफ एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस को इस पे काम करते हैं, इनहिबिट करेंगे या एसिटाइलकोलिन को और रिलीज करवाएंगे. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट अ न्यूरॉन ओनली. ठीक है. सो इट इज अ, और वी कैन से हेडिंग ये दे दो कि इट इज द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस. ठीक है. अब यू नो दैट acetyl-CoA plus choline from the surrounding will combine to form acetylcholine. अब गाइस समझो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहां पे ही, ठीक है, ये कौन से एंजाइम्स को acetylcholine acetyl transferase. ठीक है. So this is a rate limiting enzyme, choline acetyl transferase. So the drug which will inhibit this rate limiting enzyme by formation of acetylcholine is called as the hemicholine. So hemicholine is what? It is the drug which will inhibit the enzyme choline acetyl transferase, which is a rate limiting enzyme for the formation of acetylcholine. अगर यही नहीं फॉर्म होगा तो आगे कुछ होगा ही नहीं. Hence it is called rate limiting step. ठीक है. अब समझो गाइस, एसिटाइलकोलिन फॉर्म हो जाता है, वो कहां जाता है गाइस? वेसिकल्स में. अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा ड्रग दूंगा which will prevent the entry of acetylcholine into vesicle and this is called as the vesamicol. नाम में ही मतलब है. ठीक है. Vesamicol is the one which will inhibit the entry of acetylcholine into vesicles. Once the vesicle के अंदर आ गया acetylcholine, अब क्या होता है? सोडियम एंट्री होती है गाइस, तभी डिपोलराइजेशन होगा. अब मैंने सोडियम एंट्री को ही या डिपोलराइजेशन को इनहिबिट कर दिया. थर्ड स्टेप इज इनहिबिशन ऑफ सोडियम एंट्री which leads to depolarization. So it inhibits depolarization and the drugs are tetrodotoxin, Acetylcholine. तो गाइस चलो ये भी इनहिबिट नहीं हो पाया, अब हमारा डिपोलराइजेशन हो गया. अब हमारा मेन काम क्या है? दैट सोडियम एंट्री विल स्टिमुलेट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तब वो क्या रिलीज करता है? कैल्शियम को. और कैल्शियम भी क्या करता है? ऐसे इस वेसिकल्स पे जाएगा और वो बोलता है एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने में. करेक्ट. ये हमारा नॉर्मल चीज है. अब आई विल गिव अ ड्रग व्हिच विल इनहिबिट द रिलीज of the calcium from the smooth endoplasmic reticulum, जिसके वजह से क्या रिलीज होगा? Yes, acetylcholine रिलीज नहीं होगा. And the drugs which will inhibit the release of calcium from the nerves or from SCR is called as the botulinum toxin. और भी ड्रग है. This is antibiotic एक है which is called aminoglycosides. जब पढ़ोगे एंटीमाइक्रोबियल में. ठीक है. और एक टॉक्सिन है बोटुलिनम टॉक्सिन which is very very important. ठीक. ओके. अब गाइस देयर आर सम वी कैन से ना
drugs, or we can say the venoms, which releases massive acetylcholine when stimulated. One the drug which releases massive release of acetylcholine is called black widow spider venom. ठीक है, so it releases massive acetylcholine. ठीक है, so this are, we can say, the enzymes, or we can say the drugs or the substrate जो अलग अलग स्टेप पे या इनहिबिट करते हैं या पोटेंशिएट करते हैं एसिटाइलकोलिन के रिलीज को. तो ये हमको पता होना चाहिए उसके नाम. ठीक है, अब इनमें से वी शुड नो समथिंग अबाउट बोटुलिनम टॉक्सिन बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट नोट. ठीक है, तो हेडिंग दे दो बोटुलिनम टॉक्सिन. बोटुलिनम टॉक्सिन. Now guys, botulinum toxin is produced by a bacteria that is called mainly Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. और एक क्लॉस्ट्रीडियम का और एक स्पीशीज है, एक जनरल, वो क्या करता है? इट रिलीजेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी. You know, tetanus is caused by Clostridium tetani. It mainly inhibits inhibitory neurotransmitter को inhibit करते हैं, that is called as glycine and GABA. इसलिए पेशेंट का भाई एकदम एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही इनहिबिट हो गए हैं. सो गाबा ग्लाइसिन को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को डिफरेंट स्पास्मोटिक सिम्टम रहते हैं. नाउ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम किसको गाइस इनहिबिट कर रहा है? इट इनहिबिट, आप लोगों ने अभी देखा, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द नर्व्स. ठीक है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा? एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं होगा. करेक्ट. नाउ गाइस, this Clostridium botulinum has A, B, C, D, E, F, G, H. It has 8 species, or we can say the subtype Clostridium botulinum A to H. And in human beings, the most effective is A than B. ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव is A. ठीक है, जो हम लोग देखेंगे. Now this Clostridium A botulinum is a short acting. ठीक है, it's a short acting drug we can say. Now we have to make it long acting ताकि हम लोग किसी इंडिकेशन में उसको यूज कर सकते हैं. So we have to add some lipid moiety to make it long acting. And how to remember that? Lipid moiety, there are 3. OA. ठीक है, so write down ONA botulinum type A, ANO botulinum, and INCO botulinum type A. So OA is the lipid moiety which will make the botulinum toxin A longer acting. इतना सबको समझ गया? So याद रखो, OA, ONA, ANO and INCO will make it your botulinum A longer acting. It is ABO. So ONA, ABO and INCO. याद रखो, ONA, ABO and INCO. OA makes your botulinum shorter acting into longer acting. तो भाई हमने इतना चीज किया कि भाई शॉर्ट को लॉन्ग बनाया, तो कहीं यूज हो रहा होगा. तो प्लीज गिव द हेडिंग यूजेस ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन. Before just writing the uses of botulinum toxin, we should know guys that botulinum toxin, BTXA, botulinum toxin A, it is very dangerous one. You World War में बहुत यूज हुआ था. It is very dangerous. Just remember that 1 milligram of this botulinum drug or the spores, it can kill 1 million of people. इतना ज्यादा डेंजरस है, इसलिए जब भी दिया जाता है, इट इज नेवर गिवन बाय सिस्टमिक रूट. बोटुलिनम इज मेनली गिवन बाय द लोकल रूट, नॉट बाय द सिस्टमिक रूट. लोकल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि इट प्रिवेंट्स दिस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, और जाके ब्लड में इसकी टॉक्सिसिटी बहुत हो जाएगी, पेशेंट विल डाई. ठीक है, प्लस वी हैव टू ऐड एड्रेनालिन विथ बोटुलिनम बाय, बिकॉज एड्रेनालिन वैसोकंस्ट्रिक्ट कर देगा,
जब बोटुलिनम साथ में दिया जाएगा तो उसके एब्जॉर्प्शन को, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को वो कम कर देगा. सो एड एड्रेनालिन, इट विल कॉज vasoconstriction, जिसके वजह से इट विल डिक्रीज सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन इनटू ब्लड, ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन ए. ठीक है, याद रखना हमेशा, इट इज मेनली गिवन बाय द लोकल रूट. ठीक है, लोकल इंजेक्शन वी कैन से, दैट इज सबक्यूटेनियस रूट से ही ज्यादा दिया जाएगा, या लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू दिया जाएगा. ठीक है, नॉट थ्रू द सिस्टमिक रूट, अवॉइड इट. ठीक है, ओके. अब हम लोग लिखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन. टॉक्सिन ए यूजेस. ठीक है, यूजेस हमको जानना है तो हमको पता होना चाहिए भाई वो किस इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट यूज हो रहा है. तो जस्ट रिमेंबर द निमोनिक PSM, you know PSM is a subject. ठीक है, थर्ड MBBS प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन. नाउ पेन परसेप्शन, पहला इफेक्ट हमारा एसिटाइलकोलिन increases pain perception, we can say pain. Second, it increases sweating. Third, increases muscle contraction. ठीक है, so याद रखना PSM, एसिटाइलकोलिन के 3 इफेक्ट, बहुत सारे हैं बट PSM याद रखो. पेन परसेप्शन बढ़ाता है, स्वेटिंग बढ़ाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है. अब हमारा बोटुलिनम टॉक्सिन के यूजेस क्या होंगे. ठीक है, अब अगर पेन परसेप्शन, मेनली इट इज यूज्ड इन माइग्रेन, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन हेडेक, because it will decrease the pain. By inhibiting the neurotransmitter, that is acetylcholine. Sweating, it will, against acetylcholine it will decrease sweating. कोई condition है क्या guys जिसमें बहुत ज्यादा sweating होती है? Yes, in hyperhidrosis. So it is used in the treatment of hyperhidrosis. It is a condition in which there is excess of sweat and muscle contraction excess होता है. अब there are some condition हमें जहां पे muscle rigidity जो बहुत ज्यादा हो गई है उसको कम करना है. तो just remember the mnemonic TCS Bombay. Just remember torticollis. C stands for achalasia cardia. Cardia is achalasia cardia. There is some sphincter issues with मसल, मतलब इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, रिजिडिटी हो गया, रिलैक्स ही नहीं, तो वी हैव टू रिलैक्स द इसोफेजियल स्फंक्टर व्हिच इज कॉल्ड achalasia cardia. S stands for this squint and strabismus, abnormal movements, and eyelid infection, blepharospasm. So in this condition we can relax the muscles and we can use botulinum toxin. And very favorite use nowadays of botulinum toxin use is to remove wrinkles. Botox, बोलते हैं ना botox injection. So botox injection is nothing but your botulinum toxin A is to reduce the glabellar or we can say the wrinkles. ठीक है, ताकि बूढ़े ना लगे, अच्छे लगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है ना एसिटाइलकोलिन के से. सो भाई ग्लैबुलर रिंकल्स हट जाएंगे तो जवान की जवान लगेंगे. सो बोटुलिनम टॉक्सिन और द बोटॉक्स इंजेक्शन इज सेम. इट इज यूज्ड टू reduce the wrinkles. ठीक है, in beauty industries, in Bollywood industries and anywhere जहां पे there is a value of face. ठीक है, those who want to preserve their, भाई बहुत अच्छा दिखना है everything. ठीक है, understood this much? तो ये हमारा यूज हो गया guys botulinum toxin का. Give the heading receptors of cholinergic system. So receptor of acetylcholine. So guys, we have two types of receptor. The first is the nicotinic and we have the muscarinic. ठीक है, now guys just remember the nicotinic receptor, it is a type of inotropic receptor. यहाँ पे your muscarinic receptor, it is a type of GPCR type of nicotinic receptor is pentameric. ठीक है,
पेंटामेरिक, ठीक है, ऐसे रोजेट 5 और फिर ऐसे, ठीक है, जहां पे उसके रिसेप्टर होंगे कैन बी सोडियम एंट्री हो रही है और फिर कैल्शियम रिलीज होता है, दैट्स डिपोलराइजेशन एंड इट इज लाइक अ रोसेट शेप, ठीक है, यू कैन सी द पेटल्स कोलोला, सो रोसेट शेप, ठीक है. नाउ द शेप ऑफ muscarinic is serpentine और हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द रिसेप्टर, ठीक है, दिस इज एंड ऑर्गन जिसपे हमारा जो रिसेप्टर होगा दैट इज 2 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7, ठीक है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, हेलिकल, ठीक है, लाइक अ स्नेक. Okay guys, now this nicotinic is divided into nicotinic neuronal and nicotinic NM, okay, muscarinic. While this is divided into mainly muscarinic receptor, this mainly having one type muscarinic receptor that is M1 to M5, ठीक है. अब हम लोगों को वापस निकोटिनिक में दो डिवीजन है, NNM, NM. अब NN और NM दोनों अलग अलग देखना है. सो हेडिंग दो, निकोटिनिक न्यूरोनल एंड निकोटिनिक मस्करिनिक. निकोटिनिक रिसेप्टर, यस, निकोटिनिक रिसेप्टर कौन से दो टाइप के हैं गाइस? निकोटिनिक न्यूरोनल, निकोटिनिक मस्करिनिक. पहला गिव द हेडिंग लोकेशन, कहां पे सिचुएटेड है गाइस? इट इज मेनली इन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. यू नो ना, प्री गैंग्लियोनिक कहां जाता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक पे. तो जो रिसेप्टर है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज निकोटिनिक न्यूरोनल, आपको खुद ही याद है, ठीक है. सो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन किसका गाइस? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, यस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, प्लस यस एड्रिनल मेडुला का. और हर जगह ये क्या काम करते हैं? इट विल इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेडुला, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मेनली द सिंपैथेटिक, ठीक है. लोकेशन is mainly the muscles, skeletal muscle, ठीक, skeletal muscles में mainly situated होता है, ठीक है. Now coming to the second, अभी guys हमने देखा था निकोटिनिक रिसेप्टर, mainly इसके it acts through mainly, याद रखना, निकोटिनिक न्यूरोनल, ठीक है, it mainly acts through alpha and beta receptor. Now this will act through mainly 5 receptor, all 5 जो हमने देखा था पेंटामेरिक में, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा एंड एप्सिलॉन, ठीक है. ओके, अब गाइस agonist of nicotinic receptor, agonist is nicotine itself, ठीक है, और इसका भी agonist is, it is also nicotinic muscarinic, so इसका भी agonist is nicotine, ठीक है. अब हमको पता होना चाहिए गाइस इन लोगों का एंटागोनिस्ट, इनके रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट कौन है? सो एंटागोनिस्ट हेडिंग दो, एंटागोनिस्ट MHT, जस्ट रिमेंबर MHT, मिकामिलअमाइन, हेक्सामिथोनियम, मिथोनियम and trimethophan. Okay, अब NN का एंटागोनिस्ट जस्ट रिमेंबर गाइस बाय VAT. तीन ड्रग हैं VAT. पहला इज विकोरोनियम, क्यूरोनियम लाइक ड्रग, विकोरोनियम. सेकेंड इज एट्राक्यूरियम, क्यूरियम लाइक ड्रग, एंड क्यूरेर लाइक ड्रग, ठीक है. सो क्यूरियम, क्यूरोनियम एंड क्यूरेर. सो VAT is the antagonist of guys nicotinic muscarinic, and ये किस इसके एंटागोनिस्ट कौन है? MHT, मेकिलामाइन, हेक्सामिथोनियम एंड ट्राइमेथाफेन. सो गाइस ये जो हमने एंटागोनिस्ट लिखे हैं करते क्या होंगे ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर? ये इसको क्या करेंगे? किसको ब्लॉक कर देंगे? दे विल ब्लॉक द गैंग्लियोनिक, दे आर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर. और हमारा अगर मैंने एंटागोनिस्ट दे दिया सो क्या करेंगे? ठीक है, मोस्टली ये क्या कर रहे थे, हमारा ये कर रहा था मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था. अब अगर मैंने ब्लॉकर दे दिया सो दे आर
नॉन डीपोलराइजिंग मसल। ये क्या कर रहे हैं? ओनली हमारा एनएम क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था मसल्स को, अब हमने ब्लॉकर दे दिया। सो ठीक है, सो दे आर नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सिंग, दे विल रिलैक्स द मसल। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच? सो निकोटिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक मस्करिनिक रिसेप्टर हमको समझना है, समझना। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड बोथ एनएन एंड एनएन। ओके, ठीक। मस्करिनिक we have M1 to M5, just remember। अब इसमें से guys all are GPCR। अब इसमें भी याद रखो M1, M3, M5 they are GQ type of GPCR, so they will increase the secondary messenger IP3, ठीक है, and DAG। M2 and M4 they are inhibitory GI type of GPCR, they will inhibit the formation of cyclic AMP। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे सबका देखेंगे। M1, M2, M3। ठीक है, मेनली हमारे 3 रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट बॉडी में। ठीक है, M1, M2, M3। ओके, राइट। ठीक, अब प्लीज रिमेंबर दैट गाइस M1 is present both in CNS and periphery, while these two are mainly present in periphery। अब CNS में गाइस जस्ट रिमेंबर CNS में it is mainly present in हिप्पोकैम्पस। वहां पे क्या करेगा? इंक्रीजेस द मेमोरी। नाउ ऑल्सो द M1 एक्टिंग ड्रग, M1 को जो स्टिमुलेट करे दैट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स, दे आर आल्सो यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिसीज। देखो मेमोरी के लिए में क्या चाहिए? एसिटाइलकोलिन। और अल्जाइमर्स डिसीज में क्या होता है गाइस? मेमोरी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लॉस होती है, तो वी नीड एसिटाइलकोलिन, कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स आर यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिसीज। नाउ गाइस इन बेसल गैंग्लिया एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है और डोपामिन कम हो जाता है। सो देयर इज रिजिडिटी, देयर इज शफलिंग ट्रेमर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, हाथ हिलने लगता है, ट्रेमर्स होता है, दैट इज कॉल्ड पार्किंसंस डिसीज। So in basal ganglia, what happens if there is increase acetylcholine and decrease dopamine? So it leads to a disorder called Parkinson's disease. PD guys लिख लेना Parkinson's disease। अब हम लोग क्या करेंगे? We'll give anticholinergic drug, ठीक है, against देंगे। So anticholinergic drugs क्या करेंगे? It will increase dopamine and it will decrease it will decrease acetylcholine, ठीक है, ठीक। That is called anticholinergic drug and the drug is benzhexol, which is used। ठीक है, so benzhexol is also used। ठीक है, अब और एसिटाइलकोलिन अगर सेरिब्रम पे ज्यादा एक्ट कर देता है, एक्सेस, इट कैन लीड टू सीजर्स। ठीक है, so ये इसके इफेक्ट है एसिटाइलकोलिन के ऑन द ब्रेन, दैट इज सेंट्रल इफेक्ट ऑफ M1। अब पेरिफेरी में M2 भी पेरिफेरी, M3 भी पेरिफेरी और M1 भी पेरिफेरी में। ठीक, अब कहां पेरिफेरी में हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, जस्ट रिमेंबर सबसे पहले M1 बॉडी की किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? सबसे पहले अगर देखो हमारा पेट भरा हुआ है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, तो पेट पहले भरना जरूरी है, फिर भाई दिल की बात होगी, पहले पेट फिर दिल, उसके बाद सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना गाइस M1 इन द पेरिफेरी इज प्रेजेंट इन स्टमक, M2 गाइस दिल के बाद, पेट के बाद हार्ट, and M3 अदर ऑर्गन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाई स्टमक में क्या करता है, हार्ट में क्या करता है M2 रिसेप्टर, और अदर M3 अदर ऑर्गन्स में क्या क्या करता है। ठीक है, M1 इन पेरिफेरी, लोकेशन, एक्शन, एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं अगर भी कहीं भी यूज करना है। लोकेशन पहला मैंने बोला था सबसे पहले पेट भरना जरूरी है, तो लोकेशन स्टमक। यू नो भाई कोलिनर्जिक सिस्टम सिक्रीशन को क्या करते हैं? HCl के बढ़ाते कम करते हैं। यस, इट इज अ डाइजेस्ट सिस्टम, तो आराम HCl उसी समय बढ़ेगा। ठीक है, सो इट विल इंक्रीज HCl। सो अगर इंक्रीज HCl होगा तो गाइस क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू पेप्टिक अल्सर, एक्सेस। ठीक है, एंड द ड्रग व्हिच एक्ट्स, ठीक है, ऑन द M1, ठीक है, M1 अगोनिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीट्रेमोरिन। प्लीज गाइस, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीट्रेमोरिन।
एंटागोनिस्ट हम लोग देखेंगे मतलब एंटीकोलिनर्जिक। सो एंटीकोलिनर्जिक मतलब भाई कौन सी बीमारी में गाइस एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर डिसीज। सो वी कैन use anticholinergic in peptic ulcer disease, and that drugs are used in peptic ulcer are pyrazapine, which is anticholinergic acting on M1 antagonist, pyrazapine and telanzapine. This is one of the preferred drug also, ठीक है, in peptic ulcer disease। ये M1 हो गया पेरिफेरी। गाइस M2 कहाँ होगा, दिल में, M2 in heart, location heart, it will decrease heart rate by blocking sometime SA and AB node, and the M2 agonist which is methacholine, there is no antagonist, अभी तक कोई आया नहीं है, ठीक है। Now M3 other organs, other organs कहाँ पे गाइस, पहला याद रखना, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो गाइस एसिटाइलकोलिन याद रखो, उसका ब्लड वेसल पे ना आपको यहाँ दो इफेक्ट अभी दिखेगा अलग अलग मैकेनिज्म से। पहला एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, वो भी डैमेज्ड ब्लड वेसल, ये याद रखना, अगर ब्लड वेसल डैमेज्ड है सो इट रिलीजेस endothelium derived relaxing factor, release, write down endothelium derived relaxing factor, जो क्या करेंगे, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे, एंड जिसके से क्या होगा गाइस, वैसो डायलेशन होगा। नॉर्मली कोलिनर्जिक क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, बट ये क्या कर रहा है, वैसो डायलेशन, बिकॉज इट इज इंटैक्ट ब्लड वेसल, इंटैक्ट एंडोथेलियम, सॉरी नॉट डैमेज्ड, इंटैक्ट, सॉरी इंटैक्ट एंडोथेलियम, ठीक है, जो रिलीज करेगा, भाई कुछ हुआ नहीं है तो एंडोथेलियम रिलैक्सिंग फैक्टर रिलीज होगा जो स्मूथ मसल को खुद रिलैक्स कर देगा, ठीक है। ये हो गया एंडोथेलियम ब्लड वेसल पे। सेकंड हम लोग एक एक करके आते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस को क्या कर रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इट विल इंक्रीज जीआई मूवमेंट, जीआई मोटिलिटी बढ़ाएगा, पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएगा, मींस डायरिया। ब्लैडर को क्या कर रहा है गाइस, यूनिट ब्लैडर, इट इज इंक्रीजिंग यूरिनेशन, ओके। प्यूपिल को क्या करेगा गाइस, यस इट विल मियोसिस। अब गाइस या प्लीज रिमेंबर दैट ब्लड वेसल इट विल कॉज हियर, इट विल कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वो भी कौन से ब्लड वेसल, यहां लिख लेना ब्रैकेट में, डैमेज्ड ब्लड वेसल। सो डैमेज्ड ब्लड वेसल अगर है, so smooth muscle will undergo contraction, thereby it will cause vasoconstriction. But अगर intact blood vessel है, endothelium, वहां पे it will release EDRF, जिसके से vasodilation होगा। We have 5 receptors of muscarinic, M1 to M5, mainly हमारे कौन है, M1, M2, M3, M1 दोनों जगह है, CNS, पेरिफेरी में भी, M2 हार्ट में और M3 अदर ऑर्गन्स में, इतना याद रखना है। अब लास्ट हेडिंग गाइस, लास्ट चीज, what is the effect of muscarinic receptor in general on the body, ठीक है, in general on the body, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स का या कोलिनर्जिक सिस्टम का या एसिटाइलकोलिन का, वो भी हमारे इफेक्ट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे क्या होता है, ठीक है। सो गिव द हेडिंग इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन, वी कैन से द मस्करिनिक रिसेप्टर में बोल सकते हैं, ठीक है। So give the heading effect of acetylcholine on in general the muscarinic, because acetylcholine is cholinergic system और वो mainly muscarinic receptor के through ज्यादा काम करेगा। So just remember dumbbells, this you know GI movement बढ़ जाएगा, diarrhea, U for bladder का क्या होगा, increase urination, हम ऑलरेडी जानते हैं बट इसको वर्ड्स में लिख दे रहे हैं, meiosis, pinpoint pupil, B से गाइस ब्रोंको स्पैज्म, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और ब्लड वेसल क्या होगा गाइस, ब्लड वेसल मेनली अगर वो डैमेज्ड है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ऑल्सो हार्ट रेट में क्या होता है गाइस, बढ़ता है कम होता है, यस ब्रेडिकार्डिया, राइट। E फॉर इट कैन कॉज एक्साइटेटरी, ज्यादा ब्रेन स्टिमुलस हो जाएगा, एक्साइटेशन लीड्स टू सीजर्स, it can release, cause lacrimation, subsecretion बढ़ा देगा, salivation,
स्वेटिंग सब बढ़ जाएगा except the heart rate, that you know. Okay, so this is the effect of acetylcholine guys on the muscarinic receptors, mainly on the parts of the body. ठीक है, dumbbells is the mnemonic. ठीक है, DUMBLS ये हर जगह दिया हुआ है, बहुत जगह. ठीक है, understood this much? Okay, so with this we are completing the first topic of the autonomic nervous system, that is the in general acetylcholine, that is types of ANS, nerves कौन से होते हैं, acetylcholine synthesize कैसे हुआ, उसके steps पे कौन inhibit कर रहा है, कौन ज्यादा release कर रहा है, and in general the receptors of we can say acetylcholine, nicotinic, neuronal, nicotinic muscarinic, and muscarinic receptor M1 to M5, and the effect of acetylcholine on muscarinic receptor. अब इतना हम लोग समझ गए हैं जब in general पूरा चीज भाई क्या होता है cholinergic. तो हमारा next topic, next lecture we will discuss about the cholinergic drugs. ठीक है, till then आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेना. अब I will definitely try guys, मैं हर बार बोलता हूँ कि I will make the video in a shorter interval, but there were some issues जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, टाइम का परमिट नहीं हो पा रहा था, but definitely अब से मैं जरूर जो इंटरवल होगा जरूर मैं फ्रीक्वेंट वीडियोस बनाता रहूंगा और डालता रहूंगा ताकि आप लोग मिस ना करो मुझे. ठीक है, सो गाइज विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्लीज पढ़ते रहो अच्छे से एंड प्लीज मंगेश सर को याद करते रहो. थैंक यू सो मच, बाय बाय.